Good morning, dear students. Hope you are well in this pandemic. So let's start our discussion where we are going to discuss some of the important points. Let me write some important points useful for important points useful in the determination of orbit of satellite. Got it? Today in this video we are going to discuss few of the important points which are useful in the determination of orbit of satellites. We all know at this instant of time we have an idea about कि क्या है ऑर्बिट, क्या है सैटेलाइट, वी ऑल नो. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हमारा डिस्कशन होगा. दैट विल बी अमंग विच द फर्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड अर्थ स्टेशन. डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड अर्थ स्टेशन. Students, I have mentioned कि some important points which are useful in the determination of orbit of satellite. कि अगर आपको orbit of a satellite पता करना हो तो इन points की अगर आपके पास knowledge है, इन points की जानकारी है, तो you can come to know कि किस orbit में satellite है. तो उसमें first point जो कहता है distance between the satellite and earth station, कि earth station से satellite का कितनी दूरी है. So let's suppose here is the earth and somewhere here is the antenna, earth station, और सैटेलाइट की पोजीशन यहां पे कहीं है. तो अगर ये डिस्टेंस आपको पता है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, ये डिस्टेंस आपको पता है, तो बाय दिस डिस्टेंस ये हेल्पफुल होगा उसके ऑर्बिट को पता करने के लिए. गॉट इट? तो यहां से जनरली हम डायरेक्ट इस डिस्टेंस को नहीं लेते हैं, हम जो रिफरेंस लेते हैं वो यहां से लेते हैं सेंटर से, और इसको अगर हम आर बोलेंगे तो डिस्टेंस विल बी आर प्लस डी. ये कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए. और नीड नॉट वरी अबाउट दिस अर्थ रेडियस, क्योंकि हमें पता है कि दैट इज नियरली 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर की दूरी होती है. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. देन द सेकेंड वन इज कन्वर्ज एंगल. अगर हमें ये पता हो कि कन्वर्ज एंगल की वैल्यू क्या है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइड, तो वी कम टू नो कि ऑर्बिट कौन सी है, क्योंकि हर एक ऑर्बिट के लिए जो कन्वर्ज एंगल की वैल्यू होगी दैट विल बी क्वाइट डिफरेंट. तो थर्ड पॉइंट इज अर्थ स्टेशन पॉइंट एंगल, दैट इज अर्थ स्टेशन पॉइंटिंग एंगल. अर्थ स्टेशन पॉइंटिंग एंगल अगर हमें पता हो तो बाय दैट वी ऑल्सो कम टू नो what we want to know. Next is eclipse and solar interference. Eclipse and solar interferences. Next is polarization angle. Next is slant range. Means कि these are the points, whether the distance between satellite and the earth station, or the converge angle, whether the earth station pointing angle, eclipse and solar interferences, polarization angle, slant range. These, if you have knowledge about these points, you can come to know that the orbit of the satellite. Got it? So because of a continuous drift in the satellite orbit, both in longitude and latitude, due to various disturbances, perfect stationary satellite orbit is not possible. So a satellite is constrained to remain within a window. Got it?
because these are the disturbances which may disturb. So that satellite is constrained to remain within a window whose limits are defined by angular shift as seen from the center of the earth around the required nominal position. And generally this window is 75 km on the sphere containing the geostationary satellite orbit. So let me draw a diagram concerned with this. This is one axis. It is one axis. One axis. This I am taking to be x. This I am taking to be y. And this I am taking to be z. So this axis I am taking as a earth rotation. Got it? And this is generally, this is the center point. So here it is satellite, and this is what? Equatorial plane. I can't put a 3D image like, तो इस तरह से 2D से मैं बता दे रहा हूँ कि इसको ऐसे फ्लैट टाइप का समझिए, हॉरिजॉन्टली, तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेटोरियल. So this figure generally represents, this is the figure which represents coordinate system, coordinate system used to describe the earth and a satellite. Got it? These are the coordinate system, because I have told you in my previous videos also कि while knowing the position, कभी भी आप किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी व्हीकल, मतलब बॉडी और ऑब्जेक्ट में तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी की अगर आपने पोजीशन जानना हो या पोजीशन बताना हो, तो यू हैव टू टेल द कोऑर्डिनेट रिलेटेड टू दैट बॉडी और ऑब्जेक्ट. कोऑर्डिनेट्स अगर हमें पता लग गए तो easily we can come to know the position of an object. And generally we all know, dear students, कि यहाँ पे अगर हम ऐसे अर्थ को बनाते हैं, और ये this is earth, तो ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन होती है, and this one which is connected to the poles, ये आपकी क्या होती है? This is longitudes. ये आपकी क्या होते हैं? This is longitudes. And this one is what? Latitude. This one is, dear students, what? Latitudes. मतलब अगर वो लाइन इक्वेटोरियल लाइन के पैरेलल में है तो वो लैटिट्यूड होगी, और उसके परपेंडिकुलरली है तो वो लाइन क्या होगी? आपकी लॉन्गिट्यूड होगी. तो जनरली कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हमारे इसमें हेल्प करते हैं. तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसमें हमने क्या देखा कि कुछ पॉइंट्स की अगर हमें जानकारी रहे, इफ वी हैव नॉलेज अबाउट सम ऑफ द पॉइंट्स, दैट विल बी यूजफुल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट. एंड द पॉइंट्स आर बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड द अर्थ स्टेशन, कन्वर्ज एंगल, अर्थ स्टेशन पॉइंटिंग एंगल, कि कितने एंगल पे वो सैटेलाइट के टुवर्ड्स डायरेक्ट किया गया है, पॉइंट किया गया है, एंड दैट इज नथिंग बट द लुक एंगल. जो अर्थ स्टेशन पॉइंटिंग एंगल की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स लुक एंगल. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लुक एंगल, दैट मीन्स एजिमुथ और एलिवेशन एंगल. तो ये बेसिकली है. और इंटरफेरेंस के बारे में पता लगे, या पोलराइजेशन एंगल के बारे में पता लगे, या स्लैंट रेंज के बारे में पता लग जाए, तो वी कैन लेट द नॉलेज हैव ऑफ ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट. एंड जनरली जो रिप्रेजेंटेशन होता है डायग्रामेटिकली, वो जो हम कुछ इस प्रकार से करते हैं कि इक्वेटोरियल प्लेन लेते हैं और एक्सिस ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर.
ठीक है। तो एक सैटेलाइट के रिफरेंस में, एक अर्थ रोटेशन के रिफरेंस में, एक एक्स के रिफरेंस में, एक इधर किसी मान लीजिए कोई बॉडी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने सैटेलाइट ले लिया तो इसके अलॉन्ग हम ले लेंगे, क्योंकि ये एक्स है तो उसके जस्ट अपोजिट अगर यहाँ पे रहेगा तो वो सैटेलाइट करंट वो माइनस एक्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरह से हम कोऑर्डिनेट, अब जनरली यहाँ पे देखिए मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम डिनोट करना था एक्स वाई जेड, क्योंकि अगर हमें सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है तो उससे हम फिर कार्टेशियन, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल किसी भी तरह के हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम की जानकारी चाहिए, वी कैन कम टू दैट। So, dear students, this is all for today's discussion. Thank you so much.